Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today is lecture number 4, chapter number 9, optics. In the previous lecture we have determined the position of image, nature of image at a different position of an object, okay, by using concave and convex mirror, right. तो कॉन्केव मिरर हमने देखे 5-6 डायग्राम से जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड 2f रखा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा, then we keep the object at center of curvature in between f and c or on f and in between f and pole of the mirror in case of concave mirror. सबका मैंने आपको last time homework भी दिया था. I hope so you all have done the homework which I had given in the previous lecture, right, to make the table of image formed by the concave and convex mirror. तो आज हम देखने वाले कि इज इट स्पेरिकल मिरर जो है वो ज़्यादा वर्थ है क्या, कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसमें. तो आई विल सजेस्ट यू कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड इन द स्पेरिकल मिरर, राइट. तो स्पेरिकल मिरर में जो इमेज मिलती है वो ब्लर मिलती है, डिफेक्टिव मिलती है, और वो जो डिफेक्ट और जो भी है और जो भी ब्लर इमेज मिलती है विच वी कॉल द एबरेशन इन द इमेजेस और एबरेशन इन द स्पेरिकल मिरर. ओके, तो वी नो दिस फॉर्मूला दैट इज f इज इक्वल टू r/2, राइट. द फोकल लेंथ ऑफ spherical mirror is half of the radius of curvature, and this is the mirror formula which gives the information about to determine the focal length of mirror, right. So focal length is equal to sum of the in the reciprocal of image distance and the object distance, but this formula based on following assumptions. तो यहाँ पे 3 assumptions है. तो पहला assumption देखेंगे, object and images are situated क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. तो ये क्लोज रखेगा तभी ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. सेकंड जो है, सेकंड एग्जाम्पशन कि रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एंगल, मतलब लाइक दिस वेरी स्मॉल सॉलिड एंगल, राइट. सो जो भी रेज निकलते हैं यहाँ पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डाइवर्जिंग रेज निकल रही लाइक दिस. ओके, सो इट शुड फॉर्म वेरी स्मॉल एंगल, जो हम उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, राइट. आप बोलोगे कि एक रे ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो वो बड़ा एंगल बन जाता है. तो यू विल नॉट, दिस इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर दैट, राइट. सो द एजम्पशन क्या करना है कि इफ देयर इज द रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एंगल, दैट इज अ सॉलिड एंगल. ओके, if there is a parallel beam of rays, अगर parallel beam of rays है, right, so it is paraxial. parallel मतलब parallel to principal axis. okay, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रे कॉन्केव मिरर लिया, okay, ये कॉन्केव मिरर है and this is the pole of the mirror और ये principal axis है. तो the ray which are parallel to principal axis and which are very close, जो इसको very close है, तो ये क्या आएगा, this will be the paraxial rays. हम उसको क्या बोलेंगे, paraxial rays. Paraxial ray means the rays, incident rays which are parallel to principal axis and also close to the principal axis. Not only parallel but also close to the principal axis. ये लिया तभी ये equation satisfied होगा. If you are taking these rays which are away from the principal axis, which we call marginal rays, right. तो marginal rays क्या करेंगे, after reflection they may not meet exactly at principal focus. होता क्या है कि if you are taking this incident concave mirror and this is the incident ray which are very close to principal axis, ये principal axis है, तो ये जब reflect होगा mirror से, तो they will meet at a point on the principal axis, okay, and that point is called as focus. But when we are taking the incident ray which are away from the principal axis, which we call marginal rays, तो ये जो marginal rays है, these marginal rays will meet at a point not on the focus but toward the pole of the mirror, little bit away. कभी कभी यहाँ पे भी मिलेंगे वो, not only on principal axis, सब में इधर भी मिल सकते हैं, राइट. या principal axis मिले तो close to the pole of the mirror. तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा distortion आ जाता है, defect आ जाता है. And this distortion or defect due to the spherical mirror, it is called as aberration. उसको क्या बोलते हैं, spherical aberration. ओके, तो चलो इसका अच्छी तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं. वहाँ पे अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं. द डिफेक्ट्स अकरिंग इन द मिरर, स्पेरिकल मिरर आर कोमा,
ये कोमा आता है, आप नेट पे जाके देख लो क्या है कोमा. देन astigmatism. This is not part of our syllabus, but only they have given the names. Okay, then curvature. Then the next defect is distortion and spherical aberration. तो इसमें ये जो डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट में एक्सेप्ट स्पेरिकल एबरेशन, द रिमेनिंग जो ऑल अदर जैसे कोमा है, एस्टिग्मेटिज्म है, कर्वेचर है, डिस्टॉर्शन है, ऑल आर अराइज ड्यू टू द बीम्स ऑफ रेज इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइन करते हैं, उसको से पास होंगे, राइट, पासिंग थ्रू फोकस, राइट, और इंक्लाइन टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. तो उसके वजह से ये डिफेक्ट मिलते हैं. और जो डिफेक्ट है स्पेरिकल एबरेशन, it is due to the rays, incident rays, which are parallel to principal axis, which are away from the principal axis. मतलब marginal rays जो है which are at the edge of the mirror के edge पे जो incident ray होते हैं, right, तो उसके वजह से जो डिफेक्ट मिलता है. डिफेक्ट मतलब क्या कि कभी हम फोटोग्राफ निकालते हैं मोबाइल से, राइट, तो अरे यार इसका तो क्लियर ही नहीं आ रहा है. अगर मान लो आपने माइक्रोमैक्स का लिया या कोई घटिया क्वालिटी का मोबाइल लिया, राइट, कोई भी ले लो, तो उससे जो पुराने मोबाइल है उसमें क्लियरिटी नहीं आती. लेकिन आपने आईफोन लिया या OnePlus 8T लिया, जो भी लिया, मतलब कोई भी मोबाइल हो अच्छा वाला, या सैमसंग का मोबाइल लिया, तो उसमें जो क्वालिटी आती है, पिक्चर क्वालिटी, वहाँ पे आप ऐसे पिक्चर को ऐसे ये करोगे, एक्सपांड करके देखो, तो ऐसा फटता नहीं, पिक्चर फटता नहीं, मतलब कि इमेज इज़ वेरी क्लियर, राइट. तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, अंडरस्टैंड. सो दे माइट बी यूजिंग, दे आर नॉट यूजिंग अ स्पेरिकल मिरर, दे आर यूजिंग सम अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो होता है पैराबोलिक मिरर. तो वहाँ पे क्या होता है, पैराबोलिक मिरर. वैसे तो मोबाइल में लेंसेज यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे मिरर तो पॉसिबल नहीं है, तो लेंसेज दे आर यूजिंग टू गेट द क्लियर पिक्चर, राइट. लेकिन जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें जो मिरर यूज होता है दैट इज द पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल मिरर. तो पैराबोलिक बोले तो इट विल बी लाइक दिस. अभी देखो ये जो है ये स्पेरिकल है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज स्पेरिकल. तो स्पेरिकल मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर. लेकिन इसी मिरर को अगर मैंने थोड़ा पैराबोलिक कर दिया, थोड़ा ऐसा बेंड कर दिया, तो ये बन गया पैराबोला. तो ये पैराबोलिक मिरर के वजह से क्या होता है कि वी कैन रिड्यूस द एबरेशन और वी कैन मिनिमाइज द एबरेशन इन द स्पेरिकल मिरर. I hope you all understood. Now let us write the definition of spherical aberration. तब तक इसको नोट कर लो. Okay, now let us see what is the spherical aberration. Okay, earlier मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, अभी डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर लो. Suppose if you are taking a concave mirror, right? So when the object is kept here or source of light is kept here, the rays are coming parallel from the object and striking on the mirror. Okay, so just observe carefully the ray which are very close to principal axis and parallel to it, right? So after reflection they will converge, they will focus at a focus point, so which we call principal focus of the concave mirror. But the rays which are parallel to principal axis but away from it, so these rays are called as, or which are at the edges, जो margin पे है mirror के, right? तो इसको हम क्या बोलते हैं, marginal rays. So when these marginal rays get reflected back from the mirror, so they may not meet at a principal focus. तो वो कहाँ पे मिलेंगे, little bit away from it and toward the pole के तरफ मिलेंगे यहाँ पे, not on this side. ये साइड पे नहीं मिलेंगे, toward the pole side. तो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, because of this difference in the position of focus point due to the marginal rays and पैराक्सियल रेज, दीज आर कॉल्ड एज पैराक्सियल रेज. ओके, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते और नज़दीक होते, दो दैट रेज आर कॉल्ड एज पैराक्सियल रेज. तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैराक्सियल रेज. सॉरी, दिस वन, दीज आर दी पैराक्सियल रेज. तो ये जो है, दीज आर दी पैराक्सियल रेज एंड दीज आर दी मार्जिनल रेज. ओके, तो मार्जिनल रेज रिफ्लेक्शन और पैराक्सियल का रिफ्लेक्शन दोनों में डिफरेंस रहता है, और बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी आर गेटिंग द इमेज डिस्टॉर्टेड, क्लियर इमेज नहीं मिलता है. तो इस पे सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? तो एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो स्पेरिकल मिरर है इसका अपर्चर हम छोटा कर सकते हैं.
या छोटा कैसे कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे देखो मान लो एक कुछ स्टॉपर लगा दो, यहाँ पे हमारे पास डस्टर है, ओके, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे स्टॉपर लगा दो, यहाँ पे भी एक स्टॉपर लगा दो, ओके, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दो, इस पे एक स्टॉपर लगा दो, तो ओनली दीज रेज विल स्ट्राइक ऑन द मिरर, तो इसका अपर्चर छोटा हो जाएगा, राइट, एक्सपोज पार्ट ऑफ दिस मिरर विल बी स्मॉल एंड दैट रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन दे विल फोकस एट दिस पॉइंट, तो वी मे गेट अ क्लियर इमेज। अगर आप स्टॉपर निकाल दिया तो क्या होगा, वापस आपको डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगा। तो हर बार स्टॉपर तो हम लगा नहीं सकते, राइट, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो शेप है, शेप ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको थोड़ा शेप चेंज कर देंगे, तो इसको क्या कर सकते हो, वी कैन मेक इट पैराबोलिक कर देते हैं इसको, तो वी कैन मेक लाइक दिस। तो ये जो पैराबोलिक मिरर है, तो ये क्या करेगा, बिकॉज बाय यूजिंग द पैराबोलिक मिरर, सो वॉट एवर द पैराक्सियल रेज, सॉरी मार्जिनल रेज, दे वेर फोकसिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होंगे इंस्टेड ऑफ एट दिस पॉइंट एफ एम, राइट। तो इस पे सॉल्यूशन क्या है, वी कैन यूज पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके। तो चलो स्फेरिकल एबरेशन का डेफिनेशन लिख लेते। स्फेरिकल एबरेशन, इट इज जस्ट अ डिफेक्ट, ओके। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो रेज है, मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज, इसकी जो इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी टू फोकस एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो वो नहीं होती, दे डोंट हैव दैट मच एबिलिटी टू फोकस द रिफ्लेक्टेड मार्जिनल एंड पैराक्सियल रेज एट दिस पॉइंट। तो पैराक्सियल रेज विल फोकस एट दिस एंड मार्जिनल रे विल फोकस एट एफ एम, तो ये इनएबिलिटी हो गई उनकी। एक्चुअली दे शुड फोकस एट एफ पी, राइट, बट दे डोंट। तो ये जो इनएबिलिटी होती है, उन पे जो क्षमता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज spherical aberration, okay. So let's write, so the inability of what, spherical mirror of large aperture, अपर्चर मैंने लीनियर अपर्चर एंड एंगुलर अपर्चर पहले ही लेक्चर मैंने डिफाइन किया है, ओके, आपने आपको पढ़ना है डेली। अपर्चर टू ब्रिंग all the rays of wide range or wide beam of light falling where at focus, falling on it to principal focus, okay, focus at a single point, okay. See student, the inability is negative word है, not having a tendency, not having ability, right. Spherical mirror don't have ability to converge the rays at a single point, all the rays, wide beam लिया आपने, ज़्यादा बीम लिया, नंबर ऑफ बीम ज़्यादा लिया, मतलब मार्जिनल और पैराक्सियल, तो क्या होगा कि उसकी जो टेंडेंसी, जो इनएबिलिटी वो नहीं है, तो सम ऑफ द रेज आर फोकसिंग एट एफ पी, सम ऑफ द रेज आर फोकसिंग एट एफ एम, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है कि ऑल दीज पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन दे शुड कॉन्वर्ज, दे शुड फोकस एट वन सिंगल पॉइंट, तो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होना चाहिए, एंड ये नहीं होता है, इसलिए उसको क्या होता है, डिफेक्ट, वी कॉल इट एबरेशन, ओके, गॉट इट। चलो, तो ये जो ओनली तो यहाँ पे किसका फोकसिंग होता है, सो ओनली पैराक्सियल रेज converge or focus at principal focus FP and marginal rays which are at margin, which are at edge, marginal rays focuses at or converge at FM. They will focus at FM, and because of this difference, ये जो distance है, right, what is the distance, so this distance is called as
the defect, or we get that blurred image, right? So different rays are reflected onto surface. Different rays are reflected onto surface, the surface known as caustic curve. ओके तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग रेज है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे ऑन टू द सरफेस, एंड ये जो कर्व फॉर्म हुई है, दिस कर्व आर कॉल्ड एज द कॉस्टिक कर्व, और ये सब क्या है, डिफेक्ट है, सब एबरेशन है. सो चलो, हाउ टू रिड्यूस दिस, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके पॉइंट्स अभी लिखना है. तो पहला पॉइंट लिख लेते, पहला कि वी कैन यूज, तो क्या इस पे ऑप्शन क्या है, हाउ टू मिनिमाइज दिस, हाउ टू रिड्यूस दिस स्फेरिकल एबरेशन. तो इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग अ स्मॉल एपर्चर. ये जो एपर्चर है, एक्सपोज पार्ट ऑफ द मिरर, उसको छोटा कर दो, छोटा सा लेंस यूज करो, छोटा सा मिरर यूज करो. ओके, सो इट कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स. कैन बी रिड्यूस बाय following methods. So what are that methods? The first method is by using spherical mirror of small aperture. By using spherical mirror or lenses mirror of small aperture. Aperture छोटा कर दो इसको, small aperture. Then by using a stopper, मैंने बताया था आपको कि stopper, by using stoppers, so as to cut off marginal rays. Third point, by using parabolic mirror. तो ये क्वेश्चन हमका आता है एग्जाम में, हाउ टू मिनिमाइज एबरेशन इन स्पेरिकल मिरर. ओके, तो पहला क्या है कि स्मॉल एपर्चर और मिरर यूज करो. सेकंड क्या है कि यू कैन यूज द स्टॉपर टू कट द मार्जिनल रेज. और थर्ड क्या होता है, स्पेरिकल मिरर के बदले में इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल मिरर यू कैन यूज पैराबोलिक मिरर. अभी वो पैराबोलिक मिरर क्यों है उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसका जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay student, now let us see कि how does the parabolic mirror help us to reduce the spherical aberration. Okay, तो instead of spherical mirror we can use a parabolic mirror. So parabolic mirror को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, वो बाद में हम देखेंगे कि वो क्यों यूज़ करते. तो पहले यहाँ पे देखते कि it has two rays which are parallel to principal axis. ये principal axis है, and these rays which are very close to principal axis, right, they are called as paraxial rays. और जो दूर है, प्रिंसिपल एक्सिस दूर है, और विच आर एट द एजेस, एट द मार्जिन ऑफ द मिरर, इट्स कॉल्ड एज मार्जिनल रेज. सो इन केस ऑफ पैराबोलिक मिरर, व्हेन ऑल दीज रे कवर द वाइड रेंज, वाइड एरिया, वाइड अपर्चर ऑफ द पैराबोलिक मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन they will focus at a single point. And that point is called as principal focus. Okay, so these are the reflected rays of the paraxial and marginal rays. Okay, so parabolic mirror focuses all the rays in a wide parallel beam to a single point. और वो सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस. सिंगल पॉइंट कहाँ पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस.
and that point is called as f suffix p. That is the principal focus. Okay, and in this way we can reduce the spherical aberration. Okay, so spherical aberration there, so there is no spherical aberration in parabolic mirror. So there is aberration in spherical mirror only, concave और convex mirror. तो spherical mirror के जगह पे आप क्या यूज करना है, थोड़ा सा parabolic यूज करना है, राइट, so that we can reduce the defects in the mirror. Okay, तो ये जो parabolic mirror है कहाँ यूज होता है, it is used in searchlight. कहाँ यूज होता है, parabolic mirror used in, एक या दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. State the uses of parabolic mirror. Parabolic mirror are used in searchlight, जो ढूंढने में मदद करता है, searchlight. Then torch, then headlight of a car, जो अपर और डिपर के लिए यूज होता है ना. कभी कभी हम लोग नाइट के टाइम पे अपर और डिपर, वो लिखा था कार के ऊपर लिखा था पीछे, यूज डिपर एट नाइट, मतलब रोड पे कोई है क्या, रोड पे कभी कभी रेप्टाइल भी रहता है, राइट, वो दिखना चाहिए. सो हेडलाइट ऑफ अ कार, देन टेलीस्कोप. ओके, तो इसमें सब में पैराबोलिक मिरर यूज होता है, नॉट स्पेरिकल मिरर, नॉट अ कॉन्केव स्पेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर. अगर वो यूज किया तो क्या होगा, वहाँ पे डिफेक्ट आएगा, बराबर हमको वो काम नहीं करेगा. ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि वाई डज पैराबोलिक मिरर नॉट हाउ अ स्पेरिकल एबरेशन, उसको स्पेरिकल एबरेशन क्यों नहीं है, राइट. सो राइट द क्वेश्चन, वाई पैराबोलिक mirrors not having aberration क्यों नहीं है. why the reflected rays are focusing at a single point on the principal axis, that is the principal focus. okay, तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. तो ये हमारा कर्व सरफेस है, दैट इज द पैराबोला, थोड़ा सा पैराबोलिक ड्रॉ कर दी इसको. ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. तो इसका एक प्रॉपर्टी है पैराबोला का. तो प्रॉपर्टी क्या है, पैराबोला इज अ ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉन इन सच वे दैट दी एवरी पॉइंट ऑन इट, पैराबोला का हर पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट ऑन इट विच इज एट इक्वी डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एंड टू द गिवन पॉइंट, राइट. तो ये जो पॉइंट्स है पैराबोला का हर पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो एवरी पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट equidistance from a straight line as well as a focus point. और ये straight line को हम क्या बोलते हैं, this is called a directrix, we call it directrix, D-I-R-A, directrix. it is a part of mathematics. तो मैथ्स में आप इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है. ओके, उसकी प्रॉपर्टी पैराबोला की, राइट. तो उसके पे जो भी एक पॉइंट है, हर every point on the parabola which is at equidistance, right, from the fixed point and the fixed line. okay, so that ये जो straight line है, this straight line is called as directrix. okay, तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते. let's have the parallel rays. ये marginal ray लिया मैंने. ओके, नीचे भी ड्रॉ करते. so these are the parallel incident beam, right. after reflection they will focus at a point on the principal axis. मान लो यहाँ पे फोकस हो रहे, तो let us draw this reflection. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ नाम दे देंगे, पॉइंट दे देंगे. दिस इज पॉइंट P ऑफ द मिरर, देन दिस इज C, B एंड दिस इज A पॉइंट. ओके, तो ऊपर का छोड़ दो, यहाँ पे कोई इसकी जरूरत नहीं, राइट. A B C 3 पॉइंट लिया हमने, और इधर एक्सटेंड इज रेज. सो दिस विल बी C डैश, दिस विल बी B डैश एंड दिस विल बी A डैश. तो पैराबोला इज अ ज्योमेट्रिकल शेप इन सच वे दैट, right, every point on the parabola which is at equidistance from the fixed point, with this fixed point is called as focus of the parabola, and the straight line, okay, straight line close to it, that straight line is called as a directrix.
तो अभी बच्चों देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सी डैश सी सेम एज दैट ऑफ सी एफ, बी डैश बी सेम एज दैट ऑफ बी एफ, a dash a same as that of AF. Understand? Because of this property only we are using the parabola as a mirror to reduce the spherical aberration. Okay? तो यहाँ पे क्या होता है a dash, इसको भी नाम दे देंगे a double dash, this is b double dash, this is c double dash. Okay? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a dash a is equal to ए डैश ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए एफ राइट, देन बी डैश इज इक्वल टू बी एफ, देन सी डैश इज इक्वल टू सी एफ. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर द पैराबोलिक मिरर. ओके, एंड जो भी उसका पाथ है ए डबल डैश ए सिंगल डैश, बी डबल डैश बी सिंगल डैश, सी डबल डैश सी सिंगल डैश, राइट, आर ऑल इक्वल पाथ्स इन एब्सेंस ऑफ मिरर. तो ये सब इक्वल पाथ होगा, राइट. तो ये दीज आर द इक्वल पाथ्स. अगर वहाँ पे मिरर नहीं ऐसे इमेजिन करो तो दिस विल बी द इक्वल. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली द पैराबोला ए बी सी इज अ मिरर देन विच रिड्यूस द स्पेरिकल एबरेशन. मैंने सब नोट्स दिया आपको अच्छी तरह, जस्ट गो थ्रू माई नोट्स, राइट. ऑल द पॉइंट्स आर गिवन इन द नोट्स. तो यहाँ पे एफ इज द सिंगल पॉइंट, एफ पी लिख लो यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस. एंटायर बीम जो भी पैरेलल बीम है सब वहाँ पे फोकस हो गई. आप नीचे के भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर करना है तो. ओके, यहाँ के भी ड्रॉ कर सकते हैं. So that's why the parabolic mirror not having aberration, okay, because they have a tendency to converge all the rays at a single point. So this distance is same as that of this, A or A same A. This is what the property of parabola use. Okay student, let us see the unsolved numerical in the text. पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड. थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है. और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. तो शीट है, एक शीट दिया है जैसे कि लाइक दिस, ये शीट है 30 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर लिया है, छोटा सा होगा वो, राइट. और वो कहाँ पे रखा है? इट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, राइट. अभी देखो उन्होंने क्या बोला है कि ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय मिरर ऑन द सेम डायग्राम एज पर एज पॉसिबल ऑन अ स्केल पे आना चाहिए. ये थोड़ा बड़ा चैलेंजिंग है. तो चलो पहले शुरू करते हैं हम लोग. वी विल ड्रॉ द कॉन्केव मिरर. तो यहाँ हमारा कॉन्केव मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर. ओके, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर है P, और यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे समवेयर हियर इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर C ले लेते, राइट. और इसके मिडल में क्या होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस. तो चलो आई विल ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर. तो इसके मिडल में जो होगा, इस मिडल में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस F. ओके, अभी जो शीट दिया है वो शीट लेना है. वो शीट हम कहीं पे भी नहीं रख सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर रखा तो जो एज होगा, इसका जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो वो नहीं चलेगा. अगर वो यहाँ पे रखा, ओके, तो इसका जो इधर जो एज होगा उसका इमेज वहीं पे मिलेगा, राइट. और जो इधर होगा वो यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा. तो ऐसे नहीं करने का. तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस. ये दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे कितना है? फोकल लेंथ कितना दिया? 30 सेंटीमीटर. तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. और ये पॉइंट कितना होगा फिर? C पॉइंट, दिस विल बी 60. तो ये 60 सेंटीमीटर पे होगा, राइट. तो दोनों के बीच में क्या आएगा? 30 और 60 के बीच में यहाँ पे 45 सेंटीमीटर पे हम रखेंगे. वी विल कीप दी रेक्टेंगुलर शीट, उसका जो एक एज है, वन एज ऑफ रेक्टेंगल शीट वी विल कीप एट
एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट है, राइट। और उसका जो हाइट है वो हाइट दिया है, मान लो लेट दिस इज ए बी, इसको ए बी लिया मैंने, दिस एज, ओके। तो इसका जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो 30 सेंटीमीटर है, तो 45 प्लस 30 कितना होता है 75। तो यहाँ पे समवेयर हियर 75 पे वो आएगा। तो दिस 30 centimeter long sheet, this marking will be 75 centimeter. I hope you all have understood this. So this is A, B, this will be C and this will be D. C D इसको ले लेंगे, बराबर करेक्ट है। तो ये 75 है, तो यहाँ पे 80 लेंगे और यहाँ पे समवेयर 90 लेंगे और आगे बढ़ता ही जाएगा, आप ले सकते कुछ भी। ओके तो ये हमारा शीट है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर शीट। ओके तो लेट अस टेक दी 2 एजेस। पहला एज लेंगे ए बी, दूसरा एज लेंगे सी डी। तो हम पहले देखेंगे ये जो एज ए बी है वो कहाँ पे आता है, इट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जो हमने डायग्राम कल के प्रीवियस लेक्चर में जो डायग्राम ड्रॉ किए, तो वो डायग्राम थोड़ा याद करो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, इसका इमेज कहीं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं भी मिलेगा। और वो कैसा मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा, यू विल गेट अ मैग्नीफाइड इमेज। अभी ये वाला एज लेते, ये वाला अगर एज लिया, एज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, तो कहाँ पे आता है, दिस इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड 2F, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके ये सी अलग है, ये सी अलग है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके तो दिस एज ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा आपको इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा, यू विल गेट समवेयर हियर। और वो कितना होगा, डिमिनिश होगा। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा, ये यहाँ पे लॉजिक यूज करना है। बिफोर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन बनेंगे, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये जो एज है, दिस एज लाइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स विच इज इन बिटवीन दिस। तो इसका जो इमेज मिलेगा यहाँ पे कहीं पे मिलेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी मैग्नीफाइड, ओके, और इन्वर्टेड मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, खाली एक केस ऐसा है कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे इरेक्ट मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा। लेकिन हियर द एज ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट is in between C and F, so the image of this edge you will get beyond center of curvature and that will be magnified and inverted. तो ये सब इसलिए हमने कल जो अलग अलग नेचर वगैरह देखा, डायग्राम ड्रॉ किया, इसके लिए कि आपको तुरंत पता चले कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है और उसका इमेज कैसे मिलेगा, लार्ज मैग्नीफाइड मिलेगा, डिमिनिश मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, रियल मिलेगा, वो सब मालूम होना चाहिए। ओके तो चलो पहले हम फाइंड करते दी गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन फॉर एज ए बी, तो एज ए बी लेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट यू ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कितना दिया है बच्चों, यू सफिक्स ए बी इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर कैसे आया, आप बोलेगे वो तो दिया नहीं प्रॉब्लम में, बराबर है, योर क्वेश्चन इज राइट। देखो यहाँ पे हमने ये जो रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लंबाई लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो मिड पॉइंट है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है, बराबर। तो इसका रेक्टेंगुलर शीट का आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो एज होगा, तो ये 30 या पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, दिस इज 30 प्लस 15, राइट। तो 30 प्लस 15 कितना आएगा 45, लेकिन विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो एज पर द साइन कन्वेंशन वी हैव टू पुट हियर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ओके तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है लोकेशन ऑफ इमेज, जो एज ए बी है, तो एज ए बी का इमेज कहाँ मिलेगा, वी हैव टू फाइंड दैट, और मैग्निफिकेशन कितना होगा वो भी फाइंड करना है, राइट। सो लेट अस फाइंड वी सफिक्स ए बी विच इज क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर मिरर, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिरर, 1/f इज इक्वल टू 1/VAB
plus 1 upon u suffix ab. So from this our aim is to find the reciprocal of VAB is equal to reciprocal of focal length minus reciprocal of object distance UAB. अभी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 अपॉन वी सफिक्स ए बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना है -30 माइनस ऑफ यहाँ पे यू ए बी कितना है -45 तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन -30 प्लस 1 अपॉन 45. So this can be written as 1 upon 45 minus 1 upon 30. ओके तो अभी यहाँ पे 45 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 90. 45 टू द 90 तो 1 अपॉन वी ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 1 इंटू कितना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा तो दिस विल बी 90 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 90. वी हैव मेड द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम. तो ये बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 3 अपॉन 90 विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 90. तो रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ द एज ए बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 90. तो वी ए बी कैन बी टेकन एज वी ए बी इज इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर. So we'll get the image of this AB edge at a distance of 90 centimeter from the pole of the mirror. यहाँ पे मिलेगी. अभी वो कितने मैग्नीफाइड मिलेगी वो देखना है, राइट. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है m सफिक्स ए बी विच इज इक्वल टू यहाँ पे निगेटिव आता है मिरर के लिए माइनस वी ए बी अपॉन यू ए बी. ओके तो यहाँ पे क्या आएगा दिस विल बी माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज मिलता है निगेटिव साइन. ओके तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों दिस विल बी माइनस 90 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -45. तो यहाँ पे आएगा मैग्निफिकेशन एम ए बी इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 टू द 90 तो यहाँ पे -2 आएगा. तो मैग्निफिकेशन विल बी डबल. ओके तो ये कितना है ए बी कितना है ए बी इज 3 उसका डबल, राइट. तो कितना आएगा दैट विल बी 6. सो मैग्निफिकेशन हम देखेंगे अभी. सो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज. तो एम ए बी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. ओके तो इमेज साइज आई ए बी इज इक्वल टू एम ए बी इंटू ओ ए बी विच इज इक्वल टू एम ए बी कितना है -2 इंटू ओ ए बी कितना है ओ ए बी इज 3 विच इज -6 सेंटीमीटर. तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज इन्वर्टेड इमेज. तो इन्वर्टेड मतलब नीचे आएगा. तो यहाँ पे जो है दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर. तो ये इसका डबल लेना पड़ेगा इसका डबल ये लेना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट द साइज ऑफ द एज ए बी इमेज ऑफ ए बी एट दिस पॉइंट. ओके तो इसका क्या आएगा बच्चों दिस विल बी बी दिस विल बी ए बी डैश ए डैश. Okay, so we calculated the magnification of edge AB, okay, at a distance of 90 centimeter from the pole of the mirror, okay, and we also got what is the size of image. The size of image is double the size of object, but which is -6 centimeter. Negative sign indicate that it is inverted image of the edge AB. Now let us calculate कि ये जो edge CD है rectangular sheet का उसका image कहाँ पे मिलेगा वो हमको फाइंड करना है. ओके बट नाउ लेट अस सी राइट द गिवन क्वांटिटी. यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है फॉर एज सी डी इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा यू सी डी इज इक्वल टू लेट अस चेक. अभी ये कितना है यहाँ पे ये 45 है और लेंथ ऑफ शीट कितना है 30. 45 प्लस 30 75 विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. सो इट विल बी -75 सेंटीमीटर. And focal length of mirror is given f
इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमको निकालना है VCD, द इमेज डिस्टेंस ऑफ द एज CD. तो एज CD का इमेज डिस्टेंस निकालना है, VCD निकालना है. तो सेम फॉर्मूला जो ऊपर का जो वही है, सेम प्रोसीजर नीचे आपको फॉलो करना है. तो 1/f इज इक्वल टू 1/VCD प्लस 1/UCD. करेक्ट. नाउ लेट अस मेक दी 1/VCD एज अ सब्जेक्ट. तो 1/VCD is equal to 1/f minus 1/UCD. So put the value of focal length -1/30 minus of -75. Okay, so this can be written as 1/VCD is equal to, क्या आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं उसको पहले ले लूँगा. 1/75 माइनस 1/30 विच इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम क्या आएगा 150. ओके, एलसीएम इज 150. सो 150. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 150 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2. इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना है 5, तो यहाँ पे भी 5 आएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3/150 विच इज इक्वल टू -1/50. तो 1/VCD is equal to -1/50. This indicate that VCD is equal to -50 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो नेगेटिव आया है, so negative sign indicate that the image is formed on the left side of the mirror. यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है. अगर गलती से आपने यहाँ पे +50 कर दिया, it means that will be on the right side of the concave mirror and which is practically impossible. Why? Because we are keeping this object, this edge beyond center of curvature. तो जब वो beyond center of curvature होता है, beyond 2f होता है, तो उसका इमेज कहाँ मिलना चाहिए, in between C and F. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा VCD इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर. तो देखते चेक करते हैं वेदर दैट पॉइंट इज कमिंग इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉट. द आंसर इज यस, इट इज गेटिंग. ओके, तो यहाँ तक कितना है 45, तो 50 यहाँ पे आएगा. तो दिस इज द व्हाट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द CD. तो ये पॉइंट जो होगा आपका, दिस पॉइंट विल बी C एट अ डिस्टेंस ऑफ -50 सेंटीमीटर. ओके, अभी वो मैग्नीफाइड है, डिमिनिश है, तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है दिस पॉइंट, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. AB विल एक्ट एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, CD विल एक्ट एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज हमको ढूंढना है, राइट. तो यहाँ पे CD जो है विच इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू विल गेट अ इमेज इन बिटवीन C एंड F, तो दैट विल बी डिमिनिश. डिमिनिश मतलब यहाँ पे अगर ये 3 सेंटीमीटर साइज है तो 3 सेंटीमीटर से छोटा मिलना चाहिए. अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो अच्छी तरह. आई एम गोइंग टू रब दिस. तो अभी फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन ऑफ MCD इज इक्वल टू -VCD अपॉन UCD. तो माइनस इंटू ब्रैकेट -VCD कितना है 50 डिवाइड बाय UCD कितना है -75. ओके, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो माइनस इंटू ब्रैकेट 25 25 2 जा 25 3 जा 2/3. तो मैग्निफिकेशन वी गॉट द -2/3. ओके, निगेटिव आया था. देन लेट अस कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज. तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन MCD इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ICD अपॉन OCD. द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको ICD निकालना है. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू M इंटू CD मल्टीप्लाइड बाय O इंटू CD विच इज इक्वल टू MCD कितना आएगा -2/3 इंटू ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर. तो ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा. तो दिस इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं. तो विच इज ऑब्जेक्ट साइज इज गड़बड़ हो गया क्या कुछ, VCD is -50, so VCD upon
साइज ऑफ इमेज या, तो यहाँ पे ये तीन कट हो जाएगा, सो दिस विल बी -2 सेंटीमीटर। ओके, तो -2 सेंटीमीटर इमेज साइज मिला हमको यहाँ पे। ओके, ICD इज इक्वल टू -2 इंस्टेड ऑफ 3, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी, मतलब ये जो है इससे छोटा करना है, तो आई एम टेकिंग ओनली दिस मच, सो दिस साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइन करो, तो दिस इज व्हाट ये हमारा इमेज मिलेगा। ओके, सो लोकेशन विल बी व्हाट दैट -2 सेंटीमीटर। अभी जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट जो लिया हमने यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो इसका कहाँ मिलेगा, ये 3 सेंटीमीटर है। लेट दिस पॉइंट इज PQ ले लेते इसको। PQ का जो पॉइंट है, वी टेक दिस पॉइंट PQ ऊपर ले लेंगे, चलेगा। ओके, तो जो मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट विल बी PQ, तो वेयर विल गेट इसका कहाँ मिलेगा, दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट C, तो ऑफ द सेम साइज, तो वहीं पे मिलेगा। तो ये जो होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज P'Q'। ओके, तो ये मैं यहाँ पे Q' कर दिया और ये P' मिल जाएगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। तो ये P इधर आ जाएगा, है ना, उल्टा हो गया क्या, द सेम साइज इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, तो इट विल बी ये P' और ये Q' आएगा, Q' विल बी देयर, P' विल बी डाउन। ठीक है, तो ये जो है, जो मिडल पार्ट है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, उसका लिख सकते हैं। ओके, सो फॉर द पार्ट ऑफ अ शीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट, फॉर द पार्ट ऑफ शीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पार्ट है उसका वही साइज का इमेज मिलेगा जितना ऑब्जेक्ट का था। ओके, सो PQ इन ब्रैकेट UPQ, ओके, विच इज इक्वल टू, कितने डिस्टेंस पे आएगा वो, ये 45 और ये 15, 45 + 15 60, तो ये आएगा -60 सेंटीमीटर। ओके, द इमेज फॉर्म विल बी सेम, इमेज form will be same as that of object, same as that of PQ. So I PQ is equal to size of image PQ is equal to -3 सेंटीमीटर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, सो VPQ कितना आएगा, VPQ इमेज डिस्टेंस फॉर PQ विल बी -60 सेंटीमीटर। सो ऑफ द सेम साइज, तो उसका रिजल्टिंग इमेज ये मिलेगा। तो प्लीज़ ड्रॉ दिस प्रॉपरली। ओके, बहुत अच्छा, मतलब कंसेप्चुअल सम है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये CET बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, दिस कैन आस्क फॉर 3 to 4 मार्क्स, और 4 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अनसॉल्व न्यूमेरिकल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर का समय। कार यूजेस कॉन्केव मिरर ऑफ कर्वेचर 1.2 मीटर एज इट रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के पीछे साइड में जो रहता है, ड्राइवर के साइड पे रियर व्यू मिरर, तो यूज़ किया यहाँ पे, तो कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर यूज़ किया उन्होंने, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है, दे हैव यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। मिनी बस ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.2 मीटर by 2.2 meter is 6.6 meter away from the mirror, estimate the image size। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, हमने जो डायग्राम देखे, राइट, तो डायग्राम में क्या है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज स्मॉलर। तो इतना तो पक्का है कि जो बस का जो इमेज है वो छोटा मिलेगा, बस का साइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस का जो साइज दिया है, जो हाइट दिया है, दैट इज 2.2 मीटर, तो इससे काफ़ी छोटा होगा, हाईली डिमिनिश होगा, राइट। मतलब इतना तो पता चल गया कि आपका जो आंसर है वो 2.2 से बहुत छोटा होगा। दैट पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज दे हैव यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो फिजिक्स में यही है, बच्चों को न्यूमेरिकल क्यों डिफिकल्ट जाता है,
बिकॉज वो रट्टा मारते, रट्टा मारने का ही नहीं, आपको समझना है, इसमें कंसेप्ट समझना है। और कंसेप्ट अगर समझना है तो आपको वीडियो लेक्चर बार बार देखना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 बार देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस इन फिजिक्स, विच इज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। ओके फाइन। तो चलो अभी हम डायग्राम को पहले इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज लाइक दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो वी ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। तो यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर है, राइट। एंड इसका जो फोकस है, राइट, तो हम फोकस को इधर ले देते थोड़ा सा, यहाँ पे एफ पॉइंट पे, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना यहाँ पे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी समवेयर हियर, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.2 मीटर, तो फोकस कितना होगा 0.6, तो ये पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे 0.6 मीटर। Then a mini bus of cross section 2.2 meter is away 6.6 meter away, 6.6 मीटर अवे, तो यहाँ से लेना है मिरर से। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, सो फ्रॉम दिस डिस्टेंस द मिनी बस इज स्टैंडिंग स्क्वायर शेप में हो, तो ये 2.2 मीटर है, ये भी 2.2 मीटर है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस विल बी कितना है 6.6 मीटर, 6.6 मीटर, ओके। तो चलो अभी इसका ये जो पॉइंट है, ये जो साइड है, ये साइड का इमेज कहाँ मिलेगा हमको देखना है। तो डेफिनेटली ऑलवेज ऑन द अदर साइड, इधर से इधर ही मिलेगा, राइट। विल गेट ऑन दिस साइड, इमेज हमेशा इधर ही मिलती है, बिहाइंड द मिरर, नॉट हियर, बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं पे तो होगी वो, समवेयर हियर, ओके। तो यहाँ पे हम इसका फोकस ले लेंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों, दिस इज आर, आर इज 1.2 मीटर, तो फोकस यहाँ पे होगा एफ, तो दिस इज 0.6 मीटर, ओके। तो यू विल गेट द इमेज इन बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, तो ये यहीं पे मिलेगा। यू विल गेट द इमेज ऑफ द बस हियर ओनली, ओके। तो एस्टिमेट द इमेज साइज, उन्होंने क्या पूछा है, बस का साइज, जो इमेज है, इमेज ऑफ द बस, उसका साइज कितना हो हमको ढूंढना है। तो चलो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, द गिवन आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 6.6, ओके। तो u इज इक्वल टू 6.6 मीटर, बट विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, तो नेगेटिव आएगा, ओके। फोकल लेंथ दिया है f इज इक्वल टू r/2 which is equal to 1.2 divided by 2 which is 0.6 मीटर, दिस इज द फोकल लेंथ, ओके। ये पता है हमको। अभी हमको फाइंड करना है कि इमेज कहाँ मिलेगी, राइट। तो अब इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला, ओके। हमको मेक दिस v एज अ सब्जेक्ट, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू, सॉरी 1/v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/0.6। अभी यहाँ पे जो f है ये पॉजिटिव आएगा, विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, ओके। तो यहाँ पे 0.6 आएगा, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट 6.6, ओके। यहाँ पे 6.6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -6.6, so this will be 1/0.6 plus 1/66, so this can be written as 10/6 plus 1/66, ओके। तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो 1/v, चलो 1/v लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/v इज इक्वल टू 10/6 प्लस 1/66, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 66। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 11, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करने का। तो 1/v इज इक्वल टू
110 divided by 66 plus 1 upon 66 which is equal to 111 111 upon 66 which is equal to, तो इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको, अरे 10 कहाँ गया, इट वॉज 10 आई थिंक, तो गड़बड़ हो गया क्या, 110.66 प्लस 10 बाई 66, ओ 6.6 है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, दिस विल बी 10, या सॉरी डियर, इट इज़ 10/66, तो यहाँ पे 10/66 आएगा। होता है छोटे छोटे देशों में, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो दिस विल बी 120 डिवाइड बाय 66, दिस कैन बी रिड्यूस इनटू लोवेस्ट फॉर्म, इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 20/11, 6 2 जा 12, 6 11 जा, और इसका आंसर आएगा 0.55। ओके, तो 1/v आ गया इज इक्वल टू 20/11, तो v इज इक्वल टू 11/20 विच इज 0.55 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस विल बी गेटिंग एट 0.55 मीटर, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा समवेयर हियर। ओके, ये कितना 0.6, तो 0.55 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज मिलेगा उसका। ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ द बस। अभी हमको फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज ऑफ द बस। ओके, तो साइज ऑफ इमेज यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u माइनस आएगा, विच इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, तो माइनस v कितना दिया है, सो I/O इज इक्वल टू माइनस 0.55 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट 6.6, तो यहाँ पे आएगा 6.6, तो I इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट पता है ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2.2। ओके, सो ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू 2.2 मीटर, that is the size of bus. Okay, that is the size of bus, size of object मतलब size of bus, मिनी बस। सो 2.2 मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0.55 अपॉन 6.6 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज कितना है 2.2 विच इज इक्वल टू, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं होगा, -6.6, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है ना, दिया ही नहीं हमने, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वो। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द इमेज साइज विल बी 0.183, so 0.55 multiplied by 22 upon 66, 22 1 जा 22 3 जा, अभी इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 0.183 मीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, I इज इक्वल टू, I मतलब इमेज साइज, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर। ओके, तो 0.2 मीटर मतलब यहाँ पे आएगा वो, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव आया है तो वर्टिकल इरेक्ट इमेज मिलेगी, you will get a erect image of the bus. Okay, so size of image of bus will be approximately 0.2 मीटर, कितने डिस्टेंस पे 0.55 मीटर पे। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। Hello student, now we will discuss about the new phenomenon of light, that is refraction of light. Okay,
तो रिफ्रैक्शन क्या है वो पहले हम जरा डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू देख लेते हैं. ओके, तो आई विल I have a source of light, laser source of light, which you can see. This is laser source, and this is the water medium, right? I have taken the glass of water in the glass which is made up of glass, okay, and water is enclosed inside it. तो अभी थोड़ा लाइट थोड़ा कम करना पड़ेगा. Okay. So I hope you can see it. Now when the light strike obliquely on a interface, अभी interface क्या है? Interface is the separation of two media. The medium above the water is air medium and that is water medium. और glass भी, यहाँ पे तीन medium आ गए, right? So light will travel from air medium to water, water नीचे वापस glass medium से आएगा. तो see, when I am striking the ray of light obliquely, टेढ़ा डाल रहा हूँ, right? Obliquely, then there is a bending of light takes place. Okay, यहाँ पे bending हो रहा है, शायद आपको क्लियर नहीं दिखेगा, उसके लिए पूरा लाइट बंद करना पड़ेगा, राइट? टू सी द बेंडिंग ऑफ लाइट इनसाइड दिस. ओके, और व्हेन द लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, जब उसको नॉर्मली स्ट्राइक करते, राइट, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रहा है. ओके, तो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? बिकॉज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, so it changes its path because of the speed of light in air medium or in denser medium. तो speed of light in air medium कितना है? 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. और speed of light in water medium or glass medium, it is less than speed of light in air medium. So because of change in speed, there is a refraction, bending of light takes place. Okay, and this bending of light is called as refraction of light. तो चलो डेफिनेशन लिख लेते इसका. So let us write the definition of refraction of light. So the phenomenon in which the phenomenon of light where there is a change in the path of light when it travel from path of light when it passes obliquely, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क पड़ता था, passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium. ओपेक नहीं ले सकते आप, ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. मान लो ये इंटरफेस है, एक्स वाई इज द इंटरफेस. दिस इज रेयर मीडियम, this is denser medium. Okay, when the ray of light strike obliquely, जब obliquely strike करेगा, this is the point of incidence. Just draw the normal. So when the light travel from rarer to denser, instead of going straight, सीधा नहीं जाएगा, the light will not travel straight, so it will bend toward the normal. तो इधर bend होगा. The angle made by incident ray with normal, this is angle of incidence. The angle made by refracted ray with normal is called angle of refraction. So this is incident ray. This is called as incident ray. This is called as refracted ray. And जो dotted line दिखा है यहाँ पे, this is normal. Okay. Now what we call the angle made by incident ray with the interface, इसको क्या बोलेंगे? What we call this angle? This is called as angle at a glance for incidence. Okay, angle at a glance or glancing angle. In short, it is glancing angle. So glancing angle for incidence. And what we call this angle made by refracted ray with this surface? This is angle at a glance for refraction. Okay, तो यहाँ पे
जो है when the light travel from rarer to denser medium, so the angle of incidence greater than angle of refraction. Now let us see another diagram. When the light strike normally, ये interface है XY. When the light strike normally, straight, अभी अभी आपने डेमो देखा, okay? So it will not deviate after refraction. It will not deviate, but it will go straight, सीधा जाएगा. तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. भले तो बेंडिंग नहीं हो रहा है बट वहां पे स्पीड चेंज हो रहा है. ओके, तो I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 0. सो व्हेन लाइट स्ट्राइक नॉर्मली ऑन द इंटरफेस it will go straight without any deviation. Okay, now कई बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री. सॉरी, इट्स नॉट 90. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल. यहाँ पे जो इंसिडेंट रे दैट इज कोइंसाइडिंग विथ नॉर्मल. नॉर्मल को कोइंसाइड हो गया है. बोथ आर कोइंसाइडिंग सेम वे लाइक दिस. ओके, सो दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. ओके, नाउ व्हेन द लाइट स्ट्राइक फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर, यहाँ पे डेंसर है, अभी वी विल reverse the direction. When the light travel from denser to rarer medium, so draw the point of incidence here. Normal is drawn. Now when it travel from denser to rarer, so it will go away from the normal. तो normal से दूर जाएगा. तो this angle is greater. यहाँ पे angle R will be more. This angle I is smaller. So in this case, angle I less than angle R. So there are also two laws of refraction which we have studied in the first lecture along with the laws of reflection. Okay, तो थोड़ा स्पीड में ले लेते. So laws of refraction already we have stated in the first lecture. Laws of refraction. तो laws of refraction क्या है? पहला law क्या है? The first law of refraction said that the incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. Already हमने लिख लिया है. Second law said that the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. ये वाला डायग्राम ले लो यहाँ पे. तो sin I जो है sin I upon sin R is always constant, and this constant is called as refractive index of second medium with respect to first. यहाँ पे भी क्या आएगा? refractive index sin I is equal to sin I upon sin R is equal to refractive index which is n is equal to, अभी मान लो ये मीडियम 1 लिया, ये मीडियम 2 लिया. ओके, लेकिन इंसिडेंट रे कहाँ से जा रहा है? मीडियम 2 से मीडियम 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. तो हमेशा याद रखना कि ये जो बेस पे जो लिखा है नंबर दैट इंडिकेट वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा, और जो 2 है वहाँ पे से लाइट जा रहा है इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू. तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे रेशो साइन आई अपन साइन आर, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस राइट. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? ऑलरेडी वी हैव रिटन द ऑब्जर्वेशन. सो व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it will go away from the normal, and when the light travel from rarer to denser, so it will bend toward the normal, and when the light strike normally at the interface at the point of incidence, so it will go straight without any deviation. So these are the observations. Okay, तो यहाँ पे कोई deviation नहीं, no deviation, but there is a change in speed. Now why does the refraction occurs? Refraction क्यों होता है? The refraction occurs, refraction of light takes place due to, or cause of refraction is due to change in speed. Change in speed. Not only change in speed but also change in wavelength. लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होती है. What about frequency? अगर दोनों चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, बिकॉज सी v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा. तो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा. तो अगर वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, तो वेवलेंथ भी चेंज होगी.
कम होगी, एंड बोथ आर चेंजिंग इन द सेम वैल्यू, दोनों वैल्यू पे चेंज होता है, इसलिए क्या होता है, सो द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट because frequency is the characteristic of light, characteristic of color. Okay, and see if you observe carefully कि why does the frequency not change. Okay, अभी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, so you'll get a clear idea about the frequency of light, whether the frequency change or no, right. See, so यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक हो रहा है तो पानी के अंदर भी रेड लाइट ही आपको दिखेगा. Inside the water also you will get the red light only, that indicate that the frequency of light will not change at any cost. There is a change in speed and change in wavelength. Okay, so let us define the refractive index in terms of speed and wavelength. Just make a note of this. ओके, नाउ लेट अस सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट मटेरियल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम, गिवन ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, the Ri of glass is 1.5 or 3/2, or Ri of water is 4/3, that is 1.3, or refractive index of diamond is 2.4, highest refractive index, highly dense. The diamond is highly dense material, optically denser material. Okay, तो यहाँ पे optical density और material density both are different. Don't make this same. Okay, the material density of water is material density of water is 1 gram per cubic centimeter, मतलब 1 है, या वी कैन से 1000 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बट देर आर सम मटेरियल लाइक केरोसिन. तो केरोसिन जो है, केरोसिन का जो डेंसिटी इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड दैट्स व्हाई केरोसिन कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस. बट the refractive index of kerosene is greater than refractive index of water. ये difference है. Many liquids are there whose optical density is greater than water, but they are lighter than water. Material density में वो हल्के, लेकिन optical density में उसका ज़्यादा है. Okay, so let's define the refractive index in terms of speed and wavelength. Okay, so refractive index Ri is equal to the speed of light in air medium divided by speed of light in a given medium. Okay, so n is equal to c is the speed of light in air divided by v. Okay, तो यहाँ पे c क्या है? c indicate that speed in air, speed of light in air, which is कितना है बच्चों? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, it is 3 into 10⁸ meter per second. Then v is the speed of light in medium, speed of light in medium. And when we are comparing the speed of light in any medium with respect to air, जब air के साथ compare करते हैं तो क्या होता है? That is the absolute refractive index. तो see this called as n is equal to absolute refractive index.
It is the ratio of speed of light in air medium to the speed of light in given medium. Okay. Now can you tell me what could be the unit and dimension of refractive index? It is the ratio of same quantity. Okay. Ri is the ratio of same quantity. So it has no unit and no dimension. So can we write this relation in terms of wavelength? Yes, absolutely. So n is equal to c upon v. Now we can write this speed c in terms of frequency and wavelength. So c is equal to n into lambda divided by, okay, lambda air ले लेते हैं यहाँ पे, lambda air, wavelength of light in air, frequency is n, right? So frequency n into यहाँ पे lambda medium, frequency will be same, so n कट हो जाएगा, तो यहाँ पे we can write lambda air upon lambda medium. So we can find the refractive index by using three formula. पहला तो हमारा स्नेल्स लॉ है, तो वो क्या है, n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, रिफ्रैक्शन दिया है, वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला फॉर्मूला. दूसरा, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. तीसरा, एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया है, वेवलेंथ ऑफ मीडियम लाइट इन मीडियम दिया है, तो वी कैन फाइंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज absolute refractive index when the speed of light, okay, compared with the speed of light in any medium, air का कोई भी मीडियम का एयर के साथ अगर कंपैरिजन किया तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो चलो अब हम लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव मतलब वी आर रिलेटिंग द टू डिफरेंट मीडिया. ओके, तो चलो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, द लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, राइट? यहां पे ले लेते हैं, यहां पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. So it's called as relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. तो by mathematically n is equal to n to 1, which is equal to, right, v1 upon v2, or this can be written as lambda 1 upon lambda 2. और in terms of absolute refractive index, अभी ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे लिखेंगे? सपोज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया अपॉन n1, उसका दूसरा सिंबल है म्यू भी यूज कर सकते, μ2 अपॉन μ1. अगर मान लो टेस्ट पेपर में या कोई भी पेपर में अगर सिंबल म्यू यूज किया तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर एन यूज किया तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, परमिटिविटी नहीं है, रिमेंबर.
तो यहाँ पे जब भी लाइट का क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स में म्यू रेफर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन रेफर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, दिस विल बी, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे म्यू सिंबल अलग है, फ्रीक्वेंसी का म्यू है, और यहाँ पे एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये म्यू है। So this is all about the absolute refractive index and relative refractive index, right? Now let us see what are the factors on which the refractive index depends. कौन कौन से फैक्टर है जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, तो फटाफट लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन पहला तो होगा नेचर ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम है, डेंसर है, रेरर है, राइट, वाटर है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, राइट, पैराफिन है या केरोसिन है, कौन सा है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ओके, सेकंड है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कौन सा लाइट यूज किया है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। जैसे कि लैम्बडा वायलेट इज लेस दैन लैम्बडा रेड, तो लैम्बडा वायलेट का जो वेवलेंथ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम, इसका वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स में आपको 7500 दिया हुआ, यहाँ पे 3700 दिया हुआ, डिपेंड करता है, बट टेंटेटिवली 4000 एंड 8000 एंगस्ट्रॉम इज द वैल्यूज फॉर एक्सट्रीम कलर ऑफ द विबग्योर, ओके, विजिबल लाइट का। तीसरा है अगर आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ाया या केरोसिन का टेम्परेचर बढ़ाया तो हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ओके, सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर of the material, optical medium, temperature of the material. It also depends on the nature of the surrounding medium, कि surrounding medium में nature क्या, वो भी डिपेंड करता है, nature of surrounding medium। So these are the 4 factor on which the refractive index depends। okay, तो हमने आज क्या क्या देखा, absolute refractive index, relative refractive index। absolute refractive index is the ratio of speed of light in a air medium to the speed of light in the given medium, और wavelength of light in air medium to the wavelength of light in a given medium। दूसरा sin of I upon sin of R, that is the refractive index। relative refractive index क्या है, the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, that is the refractive index of second medium with respect to first। okay, उसके बाद factors on which the refractive index depends। तो पहला factor है depends on nature of medium, second wavelength of light use, violet है, red है, blue है, green है, कौन सा लाइट है वो भी डिपेंड करता है, and temperature of the material, अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, राइट। सो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम क्या है, मान लो आपने ग्लास स्लैब लिया, ओके, एयर मीडियम, उसके आजू बाजू क्या है एयर मीडियम, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना का 1.5। वही ग्लास स्लैब आपने अगर पानी में लिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विल बी डिक्रीजेस, अंडरस्टैंड। ओके, चलो बच्चों आज बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया है, इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद जो है physical significance and some phenomenon of refraction or some application of refraction we will discuss in the next class. Okay, thank you, bye bye, have a good day, see you.